Yeah. So you can read this one, page number 22 of your textbook and page number 23 of your textbook once, which again describe the thing. Okay. Now, we saw the first rule of accounting yesterday, which is a real account. So golden rules of debit and credit of for a different accounts. First rule we saw real account. Yes. What is the rule for real account? Yes, Suyo. What is the rule of real account? काय रूल आहे रिअल अकाउंटचा? लर्न झाला का रिअल अकाउंटचा रूल, डेबिट आणि क्रेडिटचा रूल? येस पूजा भाग्यश्री. Debit means come in and credit means go out. Yes, ma'am. Okay, so real account says debit what comes in and credit what goes out. असंच वाचायचं. ठीक आहे, असाच रूल लक्षात ठेवायचा. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. हा सुयोग, काय रूल डेबिट रिअल अकाउंटचा? आवाज येतोय का तुला सुयोग? डेबिट अकाउंटचा रूल सांग. सुयोग आवाज नाही येते का तुला? एकच मिनिट, आय जस्ट चेक करते कनेक्टिव्हिटी. ओके, he has gone. नहीं आहे या तुला माझा आवाज येत असेल तर अनम्यूट कर आणि बोल जरा एक मिनिट. Shall I proceed to the next one or not? I'm not able to understand if you are in a meeting or not. आवाज येत नसेल तर लॉग ऑफ कर. या लॉग ऑफ. Okay, I just wait for a minute. I don't want to go to the next one unless. Yeah. So yesterday we saw a real account rule, which says that it is one of the rules from an golden rules of an accounting. Accounting is based on these rules. Okay, throughout the globe, these rules are applied. It's not only in India कि accounting फक्त इंडिया मध्ये करण्यासाठी हे rules apply होतात. No, these rules are applied throughout the globe. ठीक है. So first rule real account. अगर कोई अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया उस ट्रांजैक्शन में जो कि रियल अकाउंट है, तो उसे हम कहेंगे उस अकाउंट को कब डेबिट करना है हमें, if that particular thing is coming into the business. So debit what comes in, and if it is going out of the business, we'll say that credit what goes out. तो उस अकाउंट को उस केस में हम उस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कर देंगे. Now nominal account. So we said nominal account is divided into two parts. One is the expenses and income. Expenses those which are recurring in nature, बार बार होने वाले खर्चे, every day, every month, every year, at least once in a year, will be called as an recurring expenses. Income which are again repetitive in nature. So nominal account is divided into two parts, and that's what इसका जो rule है वो भी इन दो parts के बारे में बात करता है. Okay, so it says that debit all expenses oblique losses and credit all income oblique gains. Okay, this is the rule of a nominal account. So nominal account says debit all expenses and losses, credit all income and gains. If in that given transaction, if there is any nominal account, then you will have to first identify if that nominal account is an expense or if that nominal account is an income for that business. If that is an expense for that business, that account will be debited. And if it is an income for that business, that account will be
credited. Okay, let's understand this with the chart that we have displayed over here. We had here one transaction which was related to the nominal account, and we said paid paid rent rupees 10,000 by cash. हमने किसी को rent दिया 10,000 rupees का in a cash. So we identified two accounts. One is the rent account, one is the cash account. So cash account, we said cash account is what type of account? कौन सा account है cash account? Real account. Cash is a real account. So real account is debit what comes in, credit what goes out. So in this example yesterday we credited the cash account by when we paid the rent, cash was actually going out of the business, right? So we credited the cash account. ये rule apply करते हैं. Now we want to talk about a rent account. So when I'm paying a rent to someone, it's that rent account which is a nominal account because rent as such दिखाई नहीं देता. It's the nomenclature which is used for that payment. कैश को एक नाम दे दिया जो कैश से पेमेंट कर रहे हैं, रेंट अकाउंट. तो ये रेंट अकाउंट यहाँ पे क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये इनकम है? इन दोनों में से क्या है इस एग्जांपल में? रेंट. यस, व्हाट इज दैट? यस पूजा, Expense. बोलो बोलो. Expense. Expense, because we are paying the rent. Nobody is giving us the rent. Business is paying the rent to someone, right? So business के point of view से assume always when I talk like this, assume that I am a business. I'm not talking as an owner. I'm talking as a business. From a business point of view, rent is paid. So paying in rent is an expense. Now rule says that, rule देखो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हमने जो रूल लिखा था. Rule says that debit all expenses or losses and credit all income and gain. ये सेकेंड रूल हमने देखा कि अगर आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, वो नॉमिनल अकाउंट अगर कोई एक्सपेंस हुआ है आपका तो उसे डेबिट कर दो, और या वो आपके लिए इनकम है तो उसे क्रेडिट कर दो. तो इस एग्जांपल में नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए? यस, व्हाट इज Debit. डेबिट? करेक्ट. So it will be debit. Debit all expenses and losses or losses. Now these two words have a different meaning, इसलिए और में इसको यूज किया है. Expense is not equal to loss, right? Let's take an example. Purchasing and newspaper is an expense, correct? Or purchasing any book is an expense. But if I again try to sell it out, I purchase it for rupees 500. तो मैंने लिख दिया बुक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा हुआ. बट जब मैं इसको बेचने जा रही हूँ, मैंने 500 रुपीज में लिया था बट अब मैं उसको सिर्फ 300 रुपये में बेच रही हूँ, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा लॉस 200 रुपये का हुआ है? कैन आई से दैट? तो एक्सपेंस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ. मैंने जब इसका फर्स्ट टाइम पेमेंट दिया मैंने एक्सपेंस ऑलरेडी कर लिया था. बट जब अब मेरा once I complete reading that book, I don't need that book and I'm trying to sell it out. So I'm selling it at a price which is lower than its cost price. जितने में लिया था कॉस्ट प्राइस 500 रुपए में लिया था, उससे कम प्राइस में मैं बेच रही हूँ क्योंकि हमने उसको यूज कर लिया. तो कैन आई से दैट आई हैड अ लॉस ऑफ रुपीज 200? 500 का बुक अगर आप 300 में बेच रहे हो, करेक्ट? So expense is a different and loss is different. So even if there are any losses happening, then we'll have to debit that account. जिस भी चीज का लॉस होगा, sometimes it happens loss due to the fire in the factory. तो ये तो प्योरली लॉस है आपका. नहीं करो, आप किसी को पेमेंट नहीं दे रहे फिर आग लगा लो, राइट? It's like already happened which is a loss for you. Goods lost in transit, loss है. Loss due to fire, loss है. Correct? So loss is different. Completely losing the money, completely getting the value which is less than its cost price is a loss. Whereas expense is spending some amount to get the benefit out of it is an expense. Okay? Income. Income, all you understand what is income? So for a business, let's understand what can be the income. Go back to this classification chart. क्या क्या income है business के लिए? देखो, गुड्स को सेल करना सबसे बड़ा इनकम है, उसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती है. उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है. अगर हमने कंपनी ने कुछ डिपॉजिट करके रखे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इनकम. डिविडेंड रिसीव,
is also an income. Dividend, कल मैंने बताया ना what is dividend. We purchase the shares of the company, right? And then we get the profit, the share in the profit of that company is called as a dividend. Rent received, rent क्या है? If a company have a big warehouse and they want to rent it out some part of that to someone else because it is extra and company gets a rent, so rent received is again a income. So let's take one example of income. ठीक है, मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे इनकम का. आपकी बुक में भी जगह होगी, वहां पे नीचे ड्रॉ कर लो. आपने पूरा ये कंप्लीट पेज यू हैव केप्ट इट ब्लैंक. दिस वन कंप्लीट पेज यू हैव केप्ट इट ब्लैंक. Yes, ma'am. Okay, so go back and write there. The transaction is received dividend rupees 250 on shares. अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते पहले बताओ कौन से अकाउंट है. यस क्विकली. रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, क्या मिला है हमें. रिसिप्ट का मतलब क्या होता है बोलो. Ma'am, cash account. एग्जैक्टली कैश में मिले होंगे ना ये पैसे. So we are writing here cash account. Now कैश मिला बट उस कैश को हमने नाम क्या दिया है. What we have got cash in form of what. सैलरी मिला है क्या, नहीं. रेंट मिला है क्या, नहीं. क्या मिला है हमें. Got the cash Share. in form of which income. Dividend. So next account that we are writing is dividend account. So let's see. और कोई अकाउंट आइडेंटिफाई करना है आपको. आई थिंक आपको शेयर अकाउंट भी आइडेंटिफाई करना है. डू यू थिंक सो. करे शेयर अकाउंट भी आइडेंटिफाई कर ले. करेंगे क्या नहीं, दिमाग में आया कि नहीं एक बार. हाँ मैम आया था. चलो तो शेयर अकाउंट भी कर लेते हैं आइडेंटिफाई. सो कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट है कैश अकाउंट. A real account. Real account. Now look at the real account rule. Yes Pooja, what is the real account rule. पढ़ के बताओ, याद करके बताओ. एनीथिंग, जस्ट स्पीक द वे इट इज गिवन. डेबिट, ऐसी बोल. Debit means what comes in and credit means what goes out. ओके, तो इसको ऐसे नहीं बोलना है कि डेबिट मीन्स नहीं बोलना है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ इन दिस ट्रांजैक्शन कैश आई आइडेंटिफाई एज द रियल अकाउंट. तो क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में कैश के साथ भैया, देख लो. कैश आ रही है कि जा रही है, क्या हो रहा है कैश के साथ. यस सुयोग, व्हाट इज हैपनिंग टू द कैश. Cash is coming in or going out. Fast, fast. बोल, unmute. In this transaction, what is happening to the cash, Suyog? Is cash coming in into the business or going out of the business? Coming in, coming in. Coming in. Coming in. एवढा वेळ का लागते मग. अहो ते इथं कनेक्ट डिव्हिडंड म्हणजे आपल्याला डिव्हिडंड मिळालं in the form of cash. So cash is coming. Got it. Okay. So cash is coming in into the business. So यहाँ पे कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा. नाउ लुक एट द डिविडेंड अकाउंट. डिविडेंड अकाउंट दिखाई देता है नहीं, कैश के फॉर्म में मिला, कैश को हमने अकाउंट फॉर कर लिया.
डिविडेंड दिखाई नहीं देगा, पर डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, करेक्ट। तो डिविडेंड अकाउंट कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? विच अकाउंट विल इट बी? Nominal account. Ma'am, nominal Sorry? account. Nominal account. नॉमिनल अकाउंट, या करेक्ट। तो या राइट राइट, सो इट विल बी एन नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जो डिविडेंड है वो आपको हर क्वार्टरली मिल सकता है या मंथली मिल सकता है, एटलीस्ट ईयर साल में एक बार तो कंपनी डिविडेंड देती है, करेक्ट। सो डिविडेंड विल बी एन नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट रूल सेज दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारे लिए डिविडेंड मिलना क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? Income. Income. So we are going to identify it here as an income, and then if it is an income, अगर वो इनकम है तो उसे क्रेडिट करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे डिविडेंड अकाउंट जब हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे तब हम उसे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? लास्ट वन, शेयर्स अकाउंट। नाउ शेयर्स, so when we buy the shares or when we sell the shares, एक्चुअली शेयर किसके फॉर्म में होते हैं? पीस ऑफ पेपर के फॉर्म में होते हैं, करेक्ट। कैन वी सी दैट पीस ऑफ पेपर? कैन वी कॉल दैट पीस ऑफ पेपर एज शेयर्स? शेयर्स किसे कहा जाएगा? जो मेरे पास वो पीस ऑफ पेपर रहेगा उसे शेयर्स कहा जाएगा। इसके ऊपर लिखा होगा कि कौन सी कंपनी का शेयर है, कितने में है, क्या फेस वैल्यू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट पीस ऑफ पेपर विल बी कॉल्ड एज अ शेयर। तो क्या हमें शेयर दिखाई देता है? यस। क्या शेयर कोई पर्सनल अकाउंट है? कैसे है शेयर? जो पीस ऑफ पेपर हमें दिखाई देता है वो क्या होगा? कौन सा अकाउंट होगा? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? क्या पूजा, भाग्यश्री, सुयोग, ट्राई? शेयर्स कौन सा अकाउंट होगा? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल तो नहीं है, पर्सनल है। फिजिकली शेयर दिखाई देता है ना हमें, राइट। तो शेयर अकाउंट कौन सा बनेगा? और ऐसा है क्या कि आज हमने बाय किया और कल हमने सेल कर दिया? जनरली शेयर्स हम कैसे परचेज करते हैं? लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने के लिए शेयर करते हैं हम लोग। तो इट इज ऑल्सो एन लॉन्ग टर्म थिंग। तो शेयर अकाउंट जो है ये एक रियल अकाउंट है, बिकॉज वी कैन सी इट, टच इट, ओके। और नाउ डेज ऑल्सो शेयर्स आर ऑल्सो इन डीमैट फॉर्मेट, बट जो उसकी ओनरशिप है वो हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, उसका ओनरशिप हमें मिलता है। तो आप उसको, अगर वो डीमैट फॉर्मेट में है तो आप उसको कह सकते हैं कि ये इंटैंजिबल रियल अकाउंट है। वी कैन फील इट, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट एन नॉमिनल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज ये रिकरिंग इन नेचर नहीं है हमारी कंपनी विल नॉट। एंड जिस कंपनी के लिए ये रिकरिंग इन नेचर होगा, ये स्टॉक, ये उसको स्टॉक की तरह ट्रीट करेगी। रिकरिंग इन नेचर, आज शेयर परचेज किया, कल बेच दिया, आज परचेज किया, कल बेच दिया। तो क्या वो उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके रख रहे हैं क्या, कि हमेशा के लिए वैसे ही रहेगा? ऐसा नहीं है। तो जो लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, लाइक अ ब्रोकर, ब्रोकर क्या करता है? शेयर्स में ट्रेडिंग करता है, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। तो उसके लिए शेयर्स एक स्टॉक है, उसके लिए वो कमोडिटी है, उसके लिए वो गुड्स है, राइट। तो उस केस में भी उसके लिए भी वो रियल अकाउंट ही ट्रीट होगा, पर उसके लिए वो कमोडिटी है और उसका बाय एंड सेल वो करेगा। यहाँ पे शेयर्स मेरे लिए रियल अकाउंट है क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया है मैंने इन शेयर्स में। तो शेयर्स विल बिकम एन रियल अकाउंट, एंड शेयर को रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। So the rule applied over here is, यहाँ पे शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं कि जा रहे हैं? We received an dividend on shares। अब इस ट्रांजैक्शन में शेयर्स के साथ क्या हो रहा है? शेयर्स आ रहे हैं क्या? नहीं। ना ही शेयर्स जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या कुछ शेयर्स के साथ? शेयर्स हम बहुत पहले ही परचेज कर चुके हैं, उसके ऊपर आज हमें डिविडेंड मिल रहा है। कुछ हो रहा है कि इसके साथ शेयर्स में, इस ट्रांजैक्शन में? Any significant thing happening on the shares? Yes? Yes or no? बोलो। जो शेयर्स हमने परचेज किए थे पहले, उसके ऊपर आज हमें डिविडेंड मिल रहा है। इस ट्रांजैक्शन में हम कहीं पे शेयर्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं क्या?
एक बार आपने फिक्स डिपॉजिट बना लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहता है। इस ट्रांजैक्शन में मैं शेयर्स परचेज कर रही हूँ क्या? नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन में मुझे शेयर अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कि डिविडेंड मुझे किसके ऊपर मिला, ये बताने के लिए शेयर ये वर्ड यूज किया गया। मुझे इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिला, ये बताने के लिए मुझे फिक्स डिपॉजिट वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे शेयर जो अकाउंट है वो सिग्निफिकेंट अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि ना ही तो वो आ रहा है ना ही तो वो जा रहा है। मिल रहा है हमें डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश। So shares account will not be an significant account here, so it should not be used. Even though shares account is a real account, इस ट्रांजैक्शन में ना ही शेयर्स आ रहे हैं ना ही शेयर्स जा रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में शेयर्स अकाउंट सिग्निफिकेंट नहीं है। जब वो मुझे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन देंगे कि मैंने टाटा मोटर्स कंपनी का शेयर्स परचेज किया, then definitely I'm going to consider that as a purchase of those shares. उस केस में मैं ये बताऊंगी कि शेयर्स मेरे पास आए, comes in debit। तो यहाँ पे शेयर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। जो ट्रांजैक्शन है वो प्योरली उसके ऊपर के डिविडेंड का ऊपर का है। आई एम नॉट टचिंग द शेयर्स अकाउंट, इसलिए यहाँ पे शेयर्स अकाउंट रिकॉर्ड होगा नहीं। ओके, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंट कौन से पिकअप करने ट्रांजैक्शन में। जिसका कोई लेना देना हुआ ही नहीं है, वो चीज उस ट्रांजैक्शन का पार्ट अकाउंट नहीं बन सकती है। ठीक है, जहाँ पे कोई रिसीवर और गिवर नहीं है, वो चीज उस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बन सकती है। ओके, क्लियर? यस, दिस रूल इज क्लियर। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट Yes, ऑल ma'am. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब जो लास्ट वाला रूल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखने के लिए भी टाइम जाएगा। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। करेक्ट। नॉमिनल अकाउंट, हाइड करो, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल नॉमिनल अकाउंट। यस, बोलो नॉमिनल अकाउंट। यस भाग्यश्री। Ma'am, debit all expenses, losses, and credit all incomes and gains. वेरी गुड। तो योग, रियल अकाउंट। पूजा बोलो रियल अकाउंट। Debit what comes in and credit what goes out. बस फटाफट मंत्र जसा जाप जाप करतो ना आपण, माळा म्हणायच्या आज 3 रूल्सच्या। काय, एक तरी माळ कंप्लीट झाली पाहिजे, आहे की नाही घरी ती जापची माळ? तिन्ही अकाउंटची माळ जपायची आज। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आता पर्सनल अकाउंट सांगणार आहे, मग माळ जपायला सुरुवात करायची। ओके, सो लास्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। झोपेत विचारलं तरी यायला पाहिजे उद्या, आणि घरच्यांनी विचारलं पाहिजे हे काय अकाउंटिंग शिकताय की काय मंत्र जपताय। ओके, सो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भैया कौन है ये रिसीवर और कौन है ये गिवर? ओके, नाउ to think for this rule, forget everything and just imagine you are the business. I am the business. Okay, मैं एक बिजनेस हूँ, मैं कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं हूँ, मेरा कोई दूसरा आइडेंटिटी नहीं है, मैं खुद एक बिजनेस हूँ। अब मुझे कंप्लीटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज में हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना था, बट ये रूल ऐसा है कि इसको आपको मैंडेटरीली सोचना ही सोचना पड़ेगा। उसके सिवा आपको समझेगा ही नहीं कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाली पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो रिसीवर होगा, कोई भी चीज का रिसीवर अगर वो होगा, तो हम उसे डेबिट दे देंगे। और अगर सामने वाला पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर वो गिवर होगा, उसने बिजनेस को कुछ दिया होगा, तो हम उसे क्रेडिट दे देंगे. फर्स्ट पॉइंट, सामने वाला पर्सन, मैं बिजनेस. ओके, तो सामने वाला पर्सन जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर है. बिजनेस उसे कुछ दे रहा है. ही बिकेम द रिसीवर ऑफ दैट थिंग. मैंने किसी को गुड्स बेचे, राइट. मैंने, let's take this example. First example, say third example, sorry. Sold goods to Mr. Amit rupees 10,000 for cash. Okay. अब सोचो मिस्टर अमित एक पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट को रूल अप्लाई हमें करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मिस्टर अमित बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर बने या गिवर बने? रिसीवर किसे कहेंगे? जिससे बिजनेस से कुछ मिल रहा है उसे रिसीवर कहेंगे. ओके. और अगर सामने वाला पर्सन बिजनेस के कुछ दे रहा है तो उसे हम गिवर कहेंगे. थिंक नाउ, वी आर सेलिंग द गुड्स. मिस्टर अमित is standing in front of the business. बिजनेस के सामने मिस्टर अमित खड़े हैं. मैम मिस्टर अमित कैन बी रिसीवर ना? एग्जैक्टली. तो मिस्टर अमित को जब मैंने गुड दिए तो मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर अमित कौन बने? रिसीवर बने. करेक्ट. सो मिस्टर अमित became an receiver of the goods. Mr. Amit is a personal account. Here which rule we will apply to Mr. Amit? कौन सा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मिस्टर अमित गिवर नहीं है. आई एम द गिवर, बिजनेस इज द गिवर. बट सामने वाला पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिस्टर अमित, वो कौन है? वो रिसीवर है. तो इसे हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, यानी सामने वाला पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कौन है, ये सोचना है. ठीक है. तो मिस्टर अमित को गुड्स मिले, यानी इसका मतलब बिजनेस, मिस्टर अमित बिकेम द रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो मिस्टर अमित बिकेम द रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो इसे हम कहेंगे रिसीवर. एंड देन मिस्टर अमित अकाउंट कैन बी डेबिटेड. इस केस में मिस्टर अमित का अकाउंट डेबिट हो सकता है. क्लियर? विल सी वन मोर एग्जांपल. ठीक है. अब यहाँ पे सपोज, नहीं, यहाँ पे तो हमने कोई पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई नहीं किया. यस. सेकंड, मिस्टर रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000. मिस्टर रमेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया. अब हमने आइडेंटिफाई किया मिस्टर रमेश इज अ पर्सनल अकाउंट. सोचते चलो, देखो, स्टार्ट करो सोचना. हम बिजनेस है, सामने मिस्टर रमेश खड़े हैं. मिस्टर रमेश ने बिजनेस को कैश दिया. क्या करोगे? क्या कहोगे मिस्टर रमेश को? क्या मिस्टर रमेश द गिवर? यस. मिस्टर रमेश सामने खड़े हैं, मिस्टर रमेश ने बिजनेस को कैश दिया. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर रमेश जो दे रहे हैं वो कौन बन गए? गिवर बन गए. करेक्ट. तो इस केस में द रूल अप्लाइड इज क्रेडिट द गिवर. जो बिजनेस को कुछ चीज देगा उसे गिवर कहेंगे और उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. है ना इंटरेस्टिंग? है. कंफ्यूजन होगा. जब तक मैं बताऊंगी तब तक सब सही लगेगा. जब खुद से करने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा. लेट्स ट्राई. ठीक है. परचेज मशीनरी फ्रॉम एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर कैश ₹25,000. अब चलो आइडेंटिफाई करो कौन सा पर्सनल अकाउंट है. एबीसी कंपनी है पर्सनल अकाउंट. सोचो अभी एबीसी कंपनी कौन है? मैं बिजनेस हूँ, मेरे सामने एबीसी कंपनी खड़ी है. सोचो अभी मिस्टर एबीसी कंपनी कौन है? रिसीवर है कि गिवर है? मैम रिसीवर. रिसीवर है. ओके. पूजा, कौन है मिस्टर एबीसी कंपनी? क्या मिला एबीसी कंपनी को? मैम एबीसी कंपनी से हमने मशीनरी परचेज की है ना,
तो एबीसी कंपनी गिवर हो गए ना, होगा ना? करेक्ट। तो अब क्या करें, एबीसी कंपनी रिसीवर भी है, एबीसी कंपनी गिवर भी है, दोनों पॉसिबल है। सबसे पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं सोचूं तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, मैंने मशीनरी ली होगी एबीसी कंपनी से, करेक्ट। तो इन द फर्स्ट स्टेज व्हेन दिस ट्रांजैक्शन हैपेंस, एबीसी कंपनी ने मुझे मशीनरी दी, तो एबीसी कंपनी बन गई गिवर। तो जब जब हम इसका अकाउंटिंग पूरी तरीके से देखेंगे तो हमें इसमें एक्चुअली इस एक ट्रांजैक्शन में, वैसे तो दो ट्रांजैक्शंस है, और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन कंबाइन एंट्री, ये एक चीज होती है जहाँ पे एबीसी कंपनी गिवर भी है, उसने मुझे मशीनरी दी एंड इसके लिए मैं उसे कैश दे रही हूँ, तो मिस्टर एबीसी कंपनी रिसीवर भी बनने वाली है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम पहले, इस सेम एक ही ट्रांजैक्शन को हम स्प्लिट करके दो बार लिख सकते हैं। कैसा है कि सामने कोई आपकी खड़ा है, वो जब तक आपको कोई गुड्स देता है, ओके, तो आप उसको एक ट्रांजैक्शन बोल सकते हो कि सामने वाले ने मुझे गुड्स दिया, तो मैं रिकॉर्ड करूंगी कि मुझे गुड्स मिले, तो गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में डेबिट कर दूंगी, और सामने वाला मेरे लिए गिवर है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी। ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। अब मैं उसे पैसे इमीडिएट देती हूँ कि कुछ दिनों बाद देती हूँ, दैट डिपेंडिंग अपॉन दैट आई विल पास द सेकेंड एंट्री। जब मैं उसको कैश दे रही हूँ तो मैं क्या तुरंत दे रही हूँ कि मैं बाद में देने वाली हूँ, उसके ऊपर वो सेकेंड एंट्री डिपेंडेंट है। तो ये एंट्री बेसिकली दो एंट्री में स्प्लिट हो जाएगी। So when we will do an accounting, in one transaction ABC will become a giver, and in another transaction अगर मैं मानो 2-3 दिनों बाद उनको कैश दे रही हूँ, पहले तो मैंने क्रेडिट पे ले लिया और फिर मैंने उनको 2-3 दिन बाद कैश दिया, तो फिर उस ट्रांजैक्शन में एबीसी कंपनी विल बिकम द रिसीवर। Depending upon that transaction, this account will be debited or credited. Right now I can't say anything because इसका एक रूल है जो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको समझेगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। बट वो तो क्यू आर करेक्ट, एबीसी कंपनी रिसीवर भी है और एबीसी कंपनी गिवर भी है, ठीक है, क्लियर। तो इसका एक रूल है, वो समझाने के बाद ये कंफ्यूजन आप में नहीं रहेगा कि उसको रिसीवर करके ट्रीट करे या गिवर करके ट्रीट करे। यहाँ तक क्लियर है थोड़ा सा, या सो लेट्स ट्राई टू डू वन एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक का है ये पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करना है, टू एस्पेक्ट्स, यानी क्या हो रहा है उस ट्रांजैक्शन में, कौन किसे कुछ दे रहा है, कि बिजनेस में कुछ आ रहा है, तो बिजनेस से कुछ जा रहा है। टू एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब टू एस्पेक्ट्स होंगे तभी तो डेबिट और क्रेडिट हो पाएगा। उसके बाद वो जो हम एस्पेक्ट ढूंढेंगे उसकी की अकाउंट्स कौन से हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। एंड थर्ड थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्लासिफाई दैट अकाउंट। तो ये जो टू एस्पेक्ट्स है ना, ये हमने पहले ऐसे क्लियरली लिखा नहीं था। जब हमने ये किया ट्रांजैक्शन, वी आइडेंटिफाई दोस टू एस्पेक्ट्स, बट हमने इसको क्लियरली लिखा नहीं था, तो आज हम इसको क्लियरली लिखने वाले। ओके, so let's, they have given us some transactions, तो इसको एक हम फॉर्मेट में डाल लेते हैं, ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट, टू अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर, चलो लेट्स ट्राई। तो ऐसा ही फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में करेंगे। So this is example number 1 on page number 24 of your textbook. पहले तो ट्रांजैक्शन को लिखो, नहीं ट्रांजैक्शन उन्होंने वहां पे दिया है, तो हम आंसर सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। हम ट्रांजैक्शन वहां पे देखेंगे, और डू यू वांट मी टू कॉपी द ट्रांजैक्शंस अगेन, आई कैन डू दैट। ठीक है, मैं ट्रांजैक्शन वापस लिख रही हूँ, आप मत लिखो, इट इज देयर इन योर बुक। तो वन थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इज, आपकी जो नोटबुक है ना, उसे भी आप पेज नंबरिंग करते चलो, नोटबुक का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज। इससे क्या होगा, ये एग्जाम्पल आपने आपकी नोटबुक में कहाँ पे सॉल्व किया है, ये आप आपके टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, so this gives you a quick referencing।
आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे. गिव अ नंबरिंग टू योर नोटबुक फ्रॉम द फर्स्ट पेज. नोटबुक के जो भी पेज पे, मान लो कि आप 5th पेज पे इसको सॉल्व कर रहे हो इस एग्जाम्पल को, तो ये 5th पेज का रेफरेंस आप आपके टेक्स्ट बुक में जाके यहाँ पे लिख लो. पेज नंबर 5 NB नोटबुक, पेज नंबर 5 NB. ऐसा आप क्रॉस रेफरेंसिंग करते चलो. इट विल हेल्प यू टू टर्न आउट द पेजेस क्विकली. ओके, यस. So first transaction, commenced business with cash ₹20,000. ठीक है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया with cash. Okay, so two aspects. Answer is like 2 aspects लिखने हैं हमें. So aspect 1, इसके बाजू में आएगा aspect 2. okay? उसके बाद हमें उसको अकाउंट में क्लासीफाई करना है. तो अकाउंट कौन सा होगा, टाइप ऑफ अकाउंट लिखना है हमें. कौन से 2 की इंपॉर्टेंट अकाउंट्स इसमें होंगे, 2 अकाउंट्स. एंड देन इसका क्लासिफिकेशन करना है कि वो अकाउंट कौन सा है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, लाइक दैट. ओके, 2 अकाउंट्स एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. तो 2 अकाउंट्स लिखने के लिए आपको थोड़ी सी जगह चाहिए, और क्लासिफिकेशन लिखने को ज्यादा जगह आपको नहीं चाहिए. तो यू फिट इन दिस इनटू दिस 5 कॉलम्स. आपको ट्रांजैक्शन लिखना नहीं है, 4 कॉलम ही आपको बनाना है. एस्पेक्ट थोड़ा सा मीडियम साइज का रहेगा कॉलम, तो भी चल जाएगा. कितने ट्रांजैक्शन है, 5 ट्रांजैक्शन. इस ट्रांजैक्शन will need 2 lines, minimum 2 lines. So around 10 to 12 lines you can draw this. Let's start. So someone started, commenced business with cash ₹20,000. Now, 2 aspects, यानी सोचो कि हुआ क्या उस ट्रांजैक्शन में. What exactly happened in this transaction? क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में? बिजनेस स्टार्ट किया आपने, करेक्ट, विथ कैश स्टार्ट किया. So can we say that cash has come into the business? कैश बिजनेस में आ गई. ये हो गया इसका फर्स्ट एस्पेक्ट. और वो कैश किसने दिया, वो भी इम्पोर्टेंट है कि कैश हमने क्या बैंक लोन से लिया है, कि हमें किसी प्रोप्राइटर ने दिया है, फाउंडर ने दिया है. कैन Proprietor. identify 2 aspects as cash is received, proprietor ने दिया cash. So first thing that I would say is cash is received into the business. Cash is received into the business. And second thing I can identify who gave it, can use the word proprietor. Proprietor is nothing but the owner of the business is called as a proprietor. जहाँ पे एक सिंगल बंदा अपना बिजनेस, वही सब कुछ करता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है, उसे प्रोप्राइटर कहते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक सिंगल बंदा, छोटा अपना पान टपरी वाला, किराना स्टोर वाला, एक ही बंदा, वन मैन शो है सब. वही परचेस करता है, वही सेल करता है, वही बिल मारता है, वही सब कुछ करता है, राइट. वही हिसाब रखेगा. दूसरा फैमिली का कोई तो होगा उसको सपोर्ट करने, एक दो लोग रहेंगे, but it's a one man show because he is man, that is called as a sole proprietor, has the cash. Okay, so proprietor, PROPRIETOR. गड़बड़ किया. Proprietor started the business. Proprietor needs the cash. Okay.
proprietor is keeper of the cash. Now 2 accounts हमें identify करने हैं. Let's see which 2 accounts we can identify. कौन से 2 accounts हम identify कर पाएंगे? देखो कौन सी 2 important चीजें हुई है यहाँ पे. मैम कैश है तो रियल बिजनेस अकाउंट में क्या आया? कैश. Correct. So first thing that we are going to write is cash account. दूसरा कौन सा account लिखेंगे? कल जब मैंने ये लिख के दिया तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिया था, इससे आपको थोड़ा इजी हो गया था, राइट? तो प्रोप्राइटर का एक नाम रहेगा ना कुछ तो, करेक्ट? तो आज हमें उसका नाम नहीं दिया है, बट हमें पता है कि प्रोप्राइटर जब कैपिटल देता है तो हमें उसे कैपिटल लिखना है. पता है तो क्या हम लिख सकते हैं? प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट. जैसे रमेश कैपिटल अकाउंट. जो देने वाला पर्सन होगा वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसका एक आइडेंटिटी होगा. आज उसका नाम नहीं पता है, so we can use the word proprietor's capital account. Okay, capital proprietor's capital account. अगर ये रमेश ने दिया होता तो रमेश कैपिटल अकाउंट, गणेश कैपिटल अकाउंट, एनीथिंग that would come. Classify the accounts. अब asset इसको क्लासिफाई करना अकाउंट को, कौन सा है बाबा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? Ma'am, cash is a real Which type of account. account? Real account. Cash is a real, because दिखाई देती है, can be seen, touch, felt, measure in money. 4 words. रट्टा, not रट्टा, repeat it. रट्टा हो जाएगा. So seen, touch, felt, money. Real account. Proprietor's capital account. प्रोप्राइटर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? गणेश है कि रमेश है कि कौन है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? ये बिजनेस किसका है? गणेश का है. ये बिजनेस किसका है? अमित का है. उनके नाम से आइडेंटिफाई Yes, किया. ma'am. And वो तो personal प्रोप्राइटर account. कैपिटल एंड पर्सनल अकाउंट. गेटिंग इट पूजा? Yes, ma'am. So this is the first thing that what we did. Now we have written it in a systematic way because this is how it has been asked. The question is, you have to identify the aspect, both the aspects, what are the 2 accounts, and then classify that account. Okay. Let's try with one more example. Purchase goods on credit from Ajay rupees 10,000. Okay. Goods from Ajay is 10,000. Purchase goods from Ajay rupees 10,000. अब क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में? एस्पेक्ट ढूंढो. फर्स्ट एस्पेक्ट, क्योंकि विदाउट दैट डेबिट एंड क्रेडिट हो ही नहीं सकता है. एक तो गिवर चाहिए, रिसीवर चाहिए, कुछ तो चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, राइट? तो जो अभी परचेज गुड्स फ्रॉम अजय रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट है ना इन्होंने, या ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन क्रेडिट? मैम उधारी ना. उधारी, एग्जैक्टली. उधारी पे लिया हमने, अमित अजय से उधारी पे गुड्स को परचेज किया. So think of what is happening now. We are purchasing what? We are purchasing goods, correct? तो हमने कहा कि गुड्स ये अकाउंट जो है ये कभी भी अकेले नहीं घूमता है. किसी को तो दोस्तों को साथ में लेके ही घूमेगा, ही अकेले कभी नहीं रहेगा. तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स के आगे एक प्रीफिक्स लगेगा. क्या लगेगा वो? व्हाट इज द प्रीफिक्स? गुड्स अकेले कभी नहीं घूमेगा, गुड्स अपने साथ किसी को लेके चलेगा. यहाँ पे गुड्स के साथ हो क्या रहा है? परचेज हो रहा है कि सेल हो रहा है? परचेज कर रहे हैं ना हम. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज परचेज गुड्स. ओके, सॉरी अकाउंट मैंने गलती से लिखा. वी हैव परचेज द गुड्स.
परचेस्ड गुड्स, ये पहली चीज हुई, गुड्स बिजनेस में आए। सेकेंडली व्हाट इज हैपनिंग, क्या कैश दे रहे क्या हम अजय को? आर वी गिविंग अ कैश टू अजय? No, ma'am. नो। कि क्या कह सकते हैं हम? we can say that we purchase the goods on credit from Ajay, correct? So on credit from Ajay, goods are purchased. On credit from Ajay, goods are purchased. It's most important that how you identify that aspect. कैश तो नहीं जा रही हमारी, तो हम कहीं पे भी कैश ये वर्ड लिखेंगे नहीं यहाँ पे। हमने गुड्स को परचेज किया। नाउ रिमेम्बर दैट गुड्स वैसे तो एक रियल अकाउंट है, क्योंकि जब गुड्स आएंगे तो गुड्स अगर एक रियल अकाउंट है, गुड्स आएंगे तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम? कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? गुड्स आएंगे तो रियल अकाउंट, व्हेन गुड्स आर कमिंग इन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? Debit. डेबिट या क्रेडिट? Debit. डेबिट। अब जब सोचो कि गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, गुड्स जब बिजनेस के बाहर जाएंगे तो भी ये रियल अकाउंट ही है, और जब ये जाते हैं तो मैं इसको गुड्स गोज आउट लिखूंगी और मैं क्रेडिट कर दूंगी। अब सोचो कि मैंने गुड्स परचेज की है, बट इसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए, तो भी मैं क्या करूंगी? गुड्स को भेज दूंगी, राइट? आई विल दो, वो मैं रिटर्न कर रही हूँ तभी भी गुड्स अकाउंट को क्रेडिट ही जाएगा। मैंने परचेज किए थे यहाँ पे, इसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए तो मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो भी मैं गुड्स अकाउंट को ही क्रेडिट कर रही हूँ, और जब गुड्स सेल होते तो भी मैं गुड्स अकाउंट को क्रेडिट ही कर रही हूँ। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुड्स रिटर्न किए हुए गुड्स है कि ये गुड्स सेल किए हुए गुड्स है। सो दैट्स व्हाट गुड्स अकाउंट इज नेवर अलोन। ये अपने साथ एक प्रीफिक्स लेके चलता है कि गुड्स के साथ हुआ क्या है, एंड व्हेन वी यूज दैट प्रीफिक्स, गुड्स अकाउंट बिकम एन नॉमिनल अकाउंट। तो जब मैं गुड्स को परचेज कर रही हूँ तो मैं गुड्स अकाउंट को अकेले नहीं लिखूंगी, सिर्फ गुड्स अकाउंट ऐसा नहीं लिखूंगी, क्योंकि जब मैं परचेज करती हूँ और उसको रिटर्न करती हूँ तो भी मैं गुड्स अकाउंट को क्रेडिट देती हूँ, और जब मैं इसे सेल करूंगी तो भी मैं क्रेडिट ही दूंगी। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये रिटर्न किए गुड्स से कि ये परचेज? अब यही सोचो, जो मैं सेल करती हूँ और किसी कस्टमर ने वापस रिटर्न कर दी तो भी हम उसे क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे। पर फिर ये परचेज वाले गुड्स ये सेल्स होने की रिटर्न आए हुए ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए गुड्स अकाउंट अपने साथ एक हमेशा प्रिफर्ड लगेगा कि ये परचेस है कि ये सेल्स है कि ये परचेस रिटर्न है या ये सेल्स रिटर्न है, तो प्रीफिक्स लग जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट बन जाता है। यहाँ पे क्योंकि कोई चीज परचेज करना एक खर्चा है, तो मैं इसको एक बास्केट में डालूंगी कॉल्ड एज अ परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट। अब जब परचेज ये वर्ड यूज होता है तो गुड्स अकाउंट आगे लिखने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैंने कहा कि गुड्स अकाउंट हमेशा एक प्रीफिक्स चलता है, और आप कह रही हूँ कि गुड्स अकाउंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेल्स ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए लिखा जाएगा। ऐसी कमोडिटी जिसमें आप डील करते हो, सिर्फ उसी के लिए ये वर्ड यूज किए जाएंगे। अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया जो कि मेरी कमोडिटी नहीं है, जिसमें मैं डील नहीं कर रही हूँ, वहां पे मैं परचेज अकाउंट ये वर्ड नहीं यूज कर सकती। मैं डायरेक्टली फर्नीचर लिख सकती हूँ, बट परचेज ऑफ फर्नीचर करके मैं नहीं लिखूंगी इसको, या सिर्फ परचेज अकाउंट ये वर्ड यूज नहीं करूंगी। ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर मैं लिख सकती हूँ, बट परचेज ऑफ गुड्स की तरह मैं सिर्फ परचेज अकाउंट नहीं लिख सकती उस केस में, क्योंकि परचेज ये अगर वर्ड आप सिर्फ परचेज ये वर्ड लिखते हो तो इट डिनोट्स दी परचेज ऑफ योर गुड्स, ये इम्प्लाइड में नहीं होता है वहां पे। तो वैसे हम परचेज अकाउंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज परचेज करना हमारे लिए खर्चा है, यस और नो?
कोई भी चीज परचेज करना जो कि कैपिटल नेचर की नहीं है, इसलिए जो कैपिटल नेचर के परचेसेस होंगे उसको मैं परचेज अकाउंट वर्ड यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये रिकरिंग इन नेचर वाला है, बार बार गुड्स परचेज करूंगी, बार बार सेल करूंगी, ये रिकरिंग इन नेचर है, इसलिए मैं इसको एक वर्ड यूज करूंगी परचेज अकाउंट. इट इज इम्प्लाइड इट इज द परचेज ऑफ गुड्स एंड इट इज नॉट परचेज ऑफ योर एनी अदर एसेट. परचेज अकाउंट परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, ये टर्न हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट. गुड्स को कुछ प्रीफिक्स लग गया, ये टर्न हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि गुड्स को परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंसेस है. तो परचेज अकाउंट विल बिकम अ नॉमिनल अकाउंट. एनी डाउट यू हैव हियर रिलेटेड टू द परचेज? पहली बात समझ लो, गुड्स को हमेशा एक प्रीफिक्स यूज करना है. फिर सेल किया तो सेल ऑफ गुड्स, परचेज किया तो परचेज ऑफ गुड्स. अब मैंने ये कहा कि जब आप परचेज ये वर्ड को यूज करोगे तो इम्प्लाइड किया जाएगा कि ये परचेज ऑफ गुड्स है, आगे गुड्स ये वर्ड लिखा नहीं तो भी चलेगा. तो इसलिए मैंने गुड्स वर्ड हटा दिया और मैंने सिर्फ एक ही अकाउंट लिखा, परचेज अकाउंट. जब मैं गुड्स बार बार परचेज करूंगी ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, so it becomes a nominal account because all recurring expenses are nominal accounts. All capital expenses are real accounts. तो फर्स्ट अकाउंट में लिखूंगी परचेज अकाउंट. सेकेंड अकाउंट, कैश तो मैं दे नहीं रही हूँ, पर मुझे किसे कैश देनी है? उधारी पे कोई चीज लेकर आए तो हम सामने वाले का नाम लिखते हैं, राइट? उधारी पे कुछ चीज लेकर गए तो सामने वाला हमारा नाम लिखता है. किसी पैसे देने हैं, इसका भी तो मैं नाम लिख के रखूंगी. किसी पैसे देने हमें कुछ दिनों बाद, जिससे जिसे भी पैसे देने उनका सबका नाम लिख के रखना पड़ेगा. किसका नाम लिखेंगे इस केस में? दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? अजय. यस, कौन सा होगा सेकेंड? अजय. अजय अकाउंट, बिकॉज कैश तो है नहीं, जिससे हम उधारी से लेके आएंगे उसका हम नाम यूज करेंगे अजय अकाउंट. नाउ अजय अकाउंट, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? Personal account. सोचो. नेम ऑफ द पर्सन, दैट्स इट. समझ में आ रहा है कैसे करना है? आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे एंड होमवर्क. मेक अ मिस्टेक, इट्स फाइन. Okay, this is how you will try to identify what is the aspect and what are the accounts. Make a mistake, please fine. If you make a mistake now, you will learn faster and हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा, ऐसा सीखोगे. So don't try to copy the solution. Be on your own. Do it with a pencil, no problem. ठीक है? So the rest of the transaction is a homework for you. Cash sales, receipt commission, paid rent. देखो एक दो लाइन का ट्रांजैक्शन है, एकदम इजी अकाउंट को तो आइडेंटिफाई करना, राइट? अगर समझ में आया तो इजी है ये, ठीक है? So this is what two aspects, classification of accounts and what are the types of the accounts that you are writing down. So इसी एक ही स्केल में इसको कंप्लीट करना है आपको. There are few more examples that they have given. So this is activity 1. Yeah. So let me do it. Okay. अब ये करने के टाइम पे आप इसका रूल अप्लाइड, इसी के आगे आप वो भी कर सकते हो, रूल अप्लाइड, और डेबिट और क्रेडिट भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा अभी उतना कवर हुआ. यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है उतना क्लियरली कि डेबिट करना है कि नहीं करना है, बट इसके आगे होमवर्क के आगे आप और 2 कॉलम बढ़ा दोगे ना, तो आपको वो भी हो जाएगा. विल यू ट्राई दैट? रूल अप्लाइड करोगी यहाँ पे आप? रूल अप्लाइड कौन सा रूल लिखना है? अगर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे आप लिखोगे कम्स इन, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे कि डेबिट देना है या क्रेडिट देना. एक ही इसमें हमारा पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. आपके यहाँ पे जगह नहीं होगा तो थोड़ा मार्जिन को यूज कर लो इसको करने के लिए. So that illustration number 1 and this activity 1 is your homework. Page number 24
का एग्जाम्पल एंड पेज नंबर 25 का एग्जाम्पल इज योर होमवर्क. ओके, सेम चीज है, वैसे ही चार्ट बनाना. डोंट फॉलो लाइक व्हाट दे हैव डन, यू फॉलो दिस चार्ट. क्लियर? Yes. So till the time we meet next time, this homework has to be completed. Okay.